morning students. In the last video we start the numerical method unit number 4. Also we discussed the first two method, that is Newton-Raphson method and Regula-Paulsen method. Now in this video we will discuss our next topic, that is solution of simultaneous equation. And in this topic there are three methods. First method is Gauss-Seidel method, second is relaxation method, and third is Grout method. Okay students, so first of all we will discuss the first method, that is Gauss-Seidel method. Okay, see the procedure. Step number 1, write down the given system as a diagonal system. Okay, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारी गिवन सिस्टम रहेगी, मतलब गिवन इक्वेशन रहेंगे, उसको डायगोनल फॉर्म में लिखना है. डायगोनल फॉर्म मतलब that diagonal element should be larger than the other element. Okay, first of all we write down the given system of equation. Suppose the given system of equations are a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. Okay, and here a1, b2, c3 are the largest in their respective equation. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, write down the given system as a diagonal system. Now diagonal system means the diagonal element a1, b2, c3 are the largest in their respective equation. Okay students, that is our step number 1. Now step number 2 is obtain the values of x, y, z. Now we have to obtain the value of x from first equation, we have to obtain the value of y from second equation, and we have to obtain the value of z in the third equation. Okay, so if we obtain x from first equation, what we get? We get d1 minus b1y minus c1z divided by a1. So we write down here 1 by a1, d1 minus b1y minus c1z. Okay, then if we obtain the value of y from second equation, then we get d2 minus a2x minus c2z divided by b2. Okay, see here 1 by b2, d2 minus a2x minus c2z. Okay, then obtain the value of z from third equation, so we get d3 minus a3x minus b3y minus divided by c3. So we get 1 by c3, d3 minus a3x minus b3y. Okay, in step number 2, we obtain the values of x, y, z from these three equations, and we denote it as equation 1, 2, 3. Okay students. Now step number 3. Now step number 3 is we have to obtain the values of x, y, z. So we can take the iteration. So for the first iteration, now first iteration में हमें क्या करना है, y and z की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड वी हैव टू, और हमें ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन 1, 2, 3 में. इन इक्वेशन 1 में हमें in equation 1 we have to put y equal to 0, z equal to 0, obtain the value of x, and we get the new value of x, so we denote it as x1. Okay, because that is the first iteration. Now secondly we have to obtain the value of y. For that अभी आपको जो भी x की न्यू वैल्यू मिलेगी, वो x की न्यू वैल्यू और z की 0 जो हमारी पुरानी वैल्यू थी, पुट x इज इक्वल टू x1, जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू, और z इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन 2 में पुट करना है. सो वी गेट y इक्वल टू y1, वी गेट द न्यू वैल्यू ऑफ y. अब देखो हमें अब x की भी वैल्यू मिली है, यहाँ पे y की भी वैल्यू मिली है, तो हमें क्या करना है, अब पुट फॉर द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1, वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ z. सो वी गेट द न्यू वैल्यू ऑफ z, दैट इज z इक्वल टू z1. ओके स्टूडेंट, सो वी गेट द फर्स्ट इटरेशन. देखो आपको क्या करना है, इनिशियल इटरेशन मतलब फर्स्ट इटरेशन में क्या करना है, y एंड z 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू और z की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x एंड y की जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू पुट करके आपको z की वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करनी है. तो हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन. देन फॉर द सेकंड इटरेशन. अब सेकंड इटरेशन में क्या करना है, अब देखो सेकंड इटरेशन के पहले हमने फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट किया था, तो हमें क्या करना है, अभी फर्स्ट इटरेशन का यूज करके सेकंड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास अभी यहाँ पे x1, y1, z1 है, इसलिए हम फॉर x के लिए y इक्वल टू y1 एंड z इक्वल टू z1 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब देखो x की वैल्यू हमें मिल गई, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ x
एंड z की पुरानी वैल्यू, क्योंकि z की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो x इज इक्वल टू x2 एंड z इक्वल टू z1 पुट करके y की वैल्यू मिलेगी। देन सिमिलरली पुट x एंड y एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ z। ऐसा आपको कब तक करना है, जब तक आपके 2 सक्सेसिव इटरेशन में वैल्यू सेम नहीं आती तब तक। या तो मैं आपको एक या यहाँ पे दूसरी भी प्रोसीजर है, वो ऐसे है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन से ये इक्वेशन आप कैलसी पे सॉल्व कर लेना। कैलसी पे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर पहले ही पता होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपको जैसे भी आंसर बताए वो जो आपका आंसर है वो आंसर आने तक आपको सॉल्व करना है, या तो अप्रोक्सीमेटली आने तक। ओके स्टूडेंट, एकदम इजी मेथड है। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में we have to write down the given system as diagonal system. Now diagonal system means the diagonal element should be larger than the other element. Okay students, after that we will discuss one example. So students, the example, apply the Gauss-Seidel method to solve the system of equation 2x minus 3y plus 20z equal to 25, 20x plus y minus 2z equal to 70 and 3x plus 20y minus z equal to minus of 18. Okay, now we have to solve the system of equation using the Gauss-Seidel method. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलसी पे तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है सबसे पहले, क्योंकि आपको इसका आंसर पहले ही पता होगा इसका आंसर क्या आने वाला है, लेकिन हमें वो आंसर गॉस-सेडल से फाइंड आउट करना है। देखो आपको क्या करना है, कैलसी में मोड में जाके इक्वेशन में जाना है, और इक्वेशन में जाने के बाद तीनों इक्वेशन टाइप करना है और ये सॉल्व करना है। सो अगर आप ये सॉल्व करेंगे कैलसी पे इक्वेशन तो आपको इसका आंसर पहले ही पता होगा। आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू 1, x इज 1, y इज -1 एंड z इज +1। ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। ओके, यहाँ पे एक बेनिफिट ऐसा है कि आपको आंसर पहले ही पता होता है। बाद में से क्या करना है, ये आंसर आपको गॉस-सेडल से फाइंड आउट करना है। इसका आंसर है 1 - 1 + 1, 1 - 1 + 1। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई द गॉस-सेडल मेथड एंड वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो फॉर दैट फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन। देखो हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, एज इट इज आएंगे हमारे गिवन इक्वेशन। उसके बाद हमारे स्टेप नंबर क्या है, इन स्टेप नंबर 1 वी हैव टू राइट डाउन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म मीन्स हमें जो भी इक्वेशन लिखने हैं उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या आने चाहिए, लार्जर। हाँ, अब देखो हमारे डायगोनल एलिमेंट हमें लार्जर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है x की टर्म। फर्स्ट टर्म में 2x है, सेकंड में 20x है, थर्ड में 3x है। अब यहाँ पे देखो x में x का कोएफिशिएंट लार्जर कहाँ पे है, तीनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x लार्जर क्या है, 20, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x, सेकंड में 20 है, थर्ड में 3 है, तो विच वन इज लार्जर, 20 इज लार्जर। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इज वी हैव this is the first equation friend, 20x plus y minus 2z equal to 17। ओके, अब देखो सेकंड इक्वेशन, अब 3y y एंड 20y, इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ y ग्रेटर कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर, दैट इज 20। सो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 3x plus 20y minus z equal to -18। ओके, अब देखो थर्ड इक्वेशन लिखना है हमें, आपको कोएफिशिएंट ऑफ z देखना है। कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है, 20 - 2 - 1, लार्जर क्या है 20। सो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 2x - 3y plus 20z equal to 25। ओके, दैट इज स्टेप नंबर 1। देखो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, गॉस-सेडल मेथड इज applicable only when the given system as a diagonal system। ओके, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। कब अप्लाई होगी, अगर हमारी इक्वेशन डायगोनल फॉर्म में है तो ही अप्लाई होगी। इसीलिए आपको ये चेक करना है कि डायगोनल फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ वी गेट द गिवन सिस्टम एज अ डायगोनल सिस्टम। ओके, दैट इज आवर स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें,
In step number 2, we have to obtain x, y, z from these three equation. So अब देखो हमें x की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो x इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से x क्या मिलेगा हमें 17 माइनस y प्लस 2z डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज 20. डिनोटेड एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन से y फाइंड आउट करना है. -18 माइनस 3x प्लस z divided by 20, equation number 2. And from third equation write down z. So z equal to 25 minus 2x plus 3y divided by 20, equation number 3. So student, we get here x, y, z from these three equations. Now we have to obtain the values of x, y, z using the iteration. Now first iteration. अब देखो हमें फर्स्ट इटरेशन में क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू पुट वाई एंड जेड एज 0 और obtain the value of x. Now number 1, put y equal to 0 and z equal to 0 in equation 1 में पुट करना है और z x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 17 माइनस y is 0 plus 2 into 0 divided by 20. So it becomes x is equal to 17 by 20. So what is x? 0.85. We get the value of x is 0.85. Okay. अब देखो हमें x की वैल्यू मिल गई. अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकंड से. सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू के लिए क्या किया हमने, y की एंड z की वैल्यू 0 पुट के इक्वेशन 1 में x मिला. अब y फाइंड आउट करना है सेकंड इक्वेशन से. सो पुट, अब देखो y के लिए क्या करना है, x की न्यू वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0.85 एंड z की वैल्यू 0, क्योंकि हमें पता नहीं है z की वैल्यू 0. इन इक्वेशन कहाँ पे पुट करना है, 2 में. तो वी गेट y इक्वल टू -18 माइनस 3 इंटू 0.85 और z क्या है 0 डिवाइडेड बाय 20. सो व्हाट इज y? y इज -18 इंटू -3 इंटू 0.85. So y is -1.027. ओके, y की वैल्यू मिली हमें -1.027. अब कैलसी पे सॉल्व करो इसको. वी गेट y is -1.027. Now we get x and y both. Now we have to obtain the value of z. So what we have to do? Put x is 0.85 and y is -1.027. In equation number 3, we get the value of z. So z is, हमारा आंसर है 1 minus 1 plus 1. 1 minus 1 plus 1. Now number 3rd, put x is equal to 0.85 and y equal to क्या है, -1.027 in equation 3. 3 में पुट करना है. So we get z equal to 25 minus 2 into x 0.85 plus 3 into -1.027 divided by 20. So इसको कैलकुलेट करो, आपको z की वैल्यू मिलेगी 1.010. ओके,
एक्स जेड की वैल्यू है प्लस 1.010, that is the first iteration. So here therefore we get x1, y1 और z1 क्या है वैल्यू, x1 की वैल्यू मिली हमें 0.85, y1 की वैल्यू मिली है -1.027 और थर्ड वैल्यू क्या है 1.010, दैट इज द फर्स्ट इटरेशन. ओके स्टूडेंट, ऐसे ही अब हमें सेकंड इटरेशन करना है, थर्ड इटरेशन करना है. नाउ सेकंड इटरेशन. अब देखो सेकंड इटरेशन में क्या करना है हमें. नंबर 1 पुट. अब देखो हमारे पास सेकंड इटरेशन का प्रीवियस इटरेशन क्या था, फर्स्ट इटरेशन. तो आपको प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू लेनी है और सेकंड इटरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो पुट. अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे y एंड z की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू लेंगे. पुट y इक्वल टू क्या है -1.027 एंड z इक्वल टू 1.010. कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में. अगेन ना इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 17 माइनस y, व्हाट इज y -1.027 और a माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.027 प्लस 2 इंटू व्हाट इज z इज 1.010 सो डिवाइडेड बाय 20. सो व्हाट इज x स्टूडेंट्स, x क्या मिलेगा आफ्टर सॉल्व करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 1.0024. ओके, ऐसे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो नंबर सेकंड. अब हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ पुट. अब हमारी x की न्यू वैल्यू क्या है 1.0024 एंड z की वैल्यू क्या थी 1.010. कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 2 में. सो वी गेट y इज इक्वल टू -18 माइनस 3 इंटू x क्या है 1.0024 प्लस z क्या है 1.010 डिवाइडेड बाय क्या है 20 डिवाइडेड बाय 20. सो व्हाट इज y इज 0.9998. वी गेट y इज 0.9998. ओके स्टूडेंट, अब देखो हमें x और y की वैल्यू मिली है. अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नंबर 3 पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली है 1.0024 एंड z की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0.9998. कहाँ पे पुट करनी है, इन इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 में क्या, इक्वेशन 3 z इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 1.0024 प्लस 3 इंटू y इज 0.998 डिवाइडेड बाय 20. सो व्हाट इज z बिकम 0.997. ओके, आपको कैसे पे सॉल्व करना है, दैट इज दिस सेकंड इटरेशन. अब देखो सेकंड इटरेशन में हमें कौन कौन सी वैल्यू मिली यहाँ पे, दैट इज x2 y2 z2. ये सेकंड इटरेशन में x क्या है, व्हाट इज x इज 1.0024. व्हाट इज y इज 0.998
और z की वैल्यू क्या है 0.998 और z क्या है 0.99997. Okay, in second iteration we get the values of x, y, z. Okay, लेकिन हमारा आंसर क्या है, आंसर आ गया हमारा 1 -1 +1. एक वैल्यू तो मिली लेकिन दो अप्रोक्सीमेटली है, तो कम से कम 3 में से 2 वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, इसलिए और हम एक इटरेशन करेंगे. नाउ थर्ड इटरेशन देखो, थर्ड इटरेशन में क्या करना है सबसे पहले. अब थर्ड में किसका यूज होगा, सेकंड इटरेशन का. सो पुट y इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 0,99998 एंड z की वैल्यू क्या है 0,997. ओके, कहाँ पे पुट करनी है, इन इक्वेशन 1. सो व्हाट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू मिलेगी. सो x इज इक्वल टू 17 माइनस y. y क्या है यहाँ पे 0.998 माइनस नॉट प्लस 2 इंटू z. z क्या है 0.997. ओके, डिवाइडेड बाय 20. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट इज x, x इज 0. इसको सॉल्व करो, आपको x मिलेगा, x इज 0.99996. ओके, व्हाट इज x, x इज 0.9996. देन सेकंड पुट. अब x की न्यू वैल्यू, x इज इक्वल टू 0. आप इसको 999 भी लिख सकते हैं, 0.9999 एंड z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.997. 0.9997 कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन 2 में. y के लिए 2 में, z के लिए 3 में और x के लिए 1 में. सो इक्वेशन 2 y इक्वल टू -18 माइनस 3 इंटू एक्स 0.9999. ओके, प्लस z. व्हाट इज z, z इज 0.9997 divided by 20. After simplification, what is y? Y become -1.00. Okay, x की वैल्यू 4 times 9, y is -1. अब हमें x और y की वैल्यू पुट कर कहाँ पे करनी है, 3 में पुट करके z मिलेगा. सो नंबर 3, पुट x is equal to, what is x, 0.9999 and y equal to -1 in equation कहाँ पे 3 में. So we get z equal to 25 minus 2 into 0.9999 plus 3 into -1 divided by 20. And after simplification we get 1.00. ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमें थर्ड इटरेशन में कौन कौन सी वैल्यू मिली है. देखो, इन थर्ड इटरेशन वी गेट x3 y3 z3. व्हाट इज x3 y3 z3? x3 क्या है 0.9999, y इज -1 एंड z इज +1. ओके, थर्ड इटरेशन में हमें जो वैल्यूज मिली है वो क्या है 0.999 -1 +1. और हमारा आंसर क्या था, हमने कैलकुलेट क्या आंसर निकाला था 1 -1 +1. तो यहाँ पे 0.999 अप्रोक्सीमेटली 1 है, एक y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू +1. मीन्स व्हाट इज आवर सॉल्यूशन, व्हाट इज x, x इज अप्रोक्सीमेटली 1. ओके, y इज -1 और z इज +1. ओके, यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीजर ध्यान में रखना है.
और पहले ही आपको कैसे पे आप आंसर साइड में निकाल लेना उसका, और बाद में उसको उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, आपको अप्रोक्सीमेटली कभी कभी अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, कभी कभी सेम वैल्यूज मिलेगी। ओके, लेकिन एटलीस्ट 2 वैल्यू तो भी सेम आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको तीनों वैल्यू नहीं मिलती, बहुत सारे इटरेशन करने के बाद भी नहीं मिलती, तो आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए। Use Gauss-Seidel method to solve 9x minus 2y plus z equal to 50, x plus 5y minus 3z equal to 18 minus 2x plus 2y plus 7z is equal to 9. ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखना है। तो गिवन सिस्टम ऑलरेडी डायगोनल फॉर्म में है। देखो यहाँ पे 9 1 माइनस 2 ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा, सेकंड इक्वेशन भी एज इट इज आएगा और थर्ड भी एज इट इज। मतलब आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए है वो ऑलरेडी डायगोनल फॉर्म में गिवन दिए है। आपको पहले इसको कैसे पे सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको पता चलेगा और बाद में एक एक इक्वेशन बनाना है। देखो आप एक जो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ये आप डायरेक्ट टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपका पहला कॉलम आएगा इक्वेशन का, तो इक्वेशन में आप जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, प्रीवियस एग्जाम्पल क्या, तो हम ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहला कॉलम आएगा हमारा इक्वेशन का, तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन है x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारा 50 प्लस 2y माइनस z डिवाइडेड बाय 9। ओके, सेकंड इक्वेशन आएगा हमारा y इक्वल टू 18 माइनस x प्लस 3z डिवाइडेड बाय 5 और z का इक्वेशन बनेगा 19 प्लस 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 7। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन एंड सो ऑन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे y(x(n), यहाँ पे y एंड z की वैल्यू 0 पुट करके, यहाँ पे y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 5 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप डायरेक्टली टेबल में भी कर सकते हैं। सेकंड टाइम क्या करना है, x की न्यू वैल्यू फाइंड x की न्यू वैल्यू x इज इक्वल टू x1 एंड z इक्वल टू 0 पुट करके y इक्वल टू y1 फाइंड करना है। देन यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1 पुट करके z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप डायरेक्टली टेबल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे y और z 0 पुट के x की वैल्यू पुट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी न्यू वैल्यू ऑफ x और z की पुरानी वैल्यू पुट करके y फाइंड आउट करना है, और z के लिए ये दोनों जो वैल्यू आएगी इसका यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैसे सेम सेकंड इटरेशन में, अब सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे हम, y इक्वल टू y1 z इक्वल टू z1, y इक्वल टू y1 एंड z इक्वल टू z1 पुट करके x की न्यू वैल्यू मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू x2 एंड z की वैल्यू z इक्वल टू z1 पुट करके y की वैल्यू पुट करनी है। अब जब आपको ये दोनों वैल्यू मिलेगी, ये दोनों वैल्यू के लिए सेट फाइंड आउट करना है। मतलब x इज इक्वल टू x2
एंड y इक्वल टू y2 के लिए फाइंड आउट करना है z इक्वल टू z2। तो आप डायरेक्टली एक टेबल में भी कर सकते हैं या जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया वैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा और उससे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, एक ही बात है, लेकिन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द नेक्स्ट मेथड। Okay, so thank you very much.